ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ इसनू लागू किया जाना चाहिए। देखिए, संकल्प संस्था की ओर से एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनमें गरीब भी उनको एक अच्छी शिक्षा देकर इस तरह से तैयार किया जाता है कोचिंग देकर कि वो यूपीएससी में सक्सेस हो सके। और पहले लंबे समय से बहुत सारी इस संस्था के माध्यम से देश की प्रशासनिक सेवाएं निभाने के लिए बहुत सारे बच्चों को आगे प्रेरित करके इन्होंने सफल होकर आगे गए हैं। और आज भी इस वर्ष में भी उनके 14 बच्चे जो हैं वो सफल हुए हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम देके और देश की सेवाएं निभाने के लिए और प्रशासनिक सेवाएं निभाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि देश को आगे चलाने में इस प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ होता है और इनकी प्रेरणा से वो आगे बढ़े हैं। और ये जहाँ वो बाकी अपना नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाप का रोशन नाम करते हैं, वहीं अपनी संस्था का भी नाम रोशन करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पंजाब का भी नाम उसमें रोशन होगा। ये इसके लिए हमें बहुत गर्व है ऐसी संस्थाओं के ऊपर जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को चुन के आगे भेजा है। तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और संकल्प के लिए भी दुआएं करता हूँ कि वो आगे और इसी तरह से काम करते लिए रहें और हमारे लायक भी कोई सेवा ऐसी कोई उनको लगे जो उसमें हम उनको सहयोग कर सकते हैं तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। देखिए, मैं जिस संवैधानिक पद पे बैठा हूँ उसमें राजनीतिक बातें तो नहीं कर सकते मगर एक देश का नागरिक होने के नाते ये जो कह सकता हूँ कि भाई ये एक अच्छी प्रतिक्रिया नहीं थी। और क्योंकि ये जो जिस तरह से उनको अपने अधिकारियों को या एक इस लेवल के अधिकारियों को जो वाइस चांसलर लेवल के अधिकारी हैं उनको अगर बेइज्जत करेंगे तो वो थोड़ा सा उसका रिएक्ट भी होगा क्योंकि जिस कारण के लिए जिस सम्मान के लिए उनको बेइज्जत किया गया उसकी जिम्मेवारी तो उन लोगों की है। उन्होंने प्रोवाइड करवाना सरकार का जिम्मेवारी होती है और सरकार अपनी यानी कमियों को छुपाने के लिए किसी दूसरे को बेइज्जत करे ये एक नागरिक होने के नाते मुझे अच्छा नहीं है। अब पिछले काफ़ी लंबे समय से पंजाब में ये एक स्कॉलरशिप लेके बहुत बड़ा इशू है और पूरे देश में इतना बड़ा इशू कहीं नहीं है जितना बड़ा पंजाब में है। और उसमें सिर्फ कारण ये है कि समय के रहते हुए सरकारें और अधिकारियों के द्वारा पूरी तरह से इसको लागू ना करना और
ये कहें कि साफ़ नीयत से काम नहीं करना। तो उसके लिए हमने बार बार उनको बुलाते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, कोई प्रॉपर जवाब नहीं देते, गोलमोल जवाब देते हैं। हमने तो ये पूछा कि आपने उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जिन्होंने ये दोषी घोटाले में हुए उनके लिए, और जो 3 साल का बकाया है कॉलेज का, जिस कारण बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही है, क्योंकि आज कॉलेज इसलिए एडमिशन नहीं दे रहे कि उनको पैसा नहीं मिल रहा, मगर सरकार पैसा नहीं दे रही। तो इसमें पिस कौन रहा है? पिस तो रहा है अनुसूचित जाति का बच्चा, जो गरीब बच्चा है। अमीर वाला तो अनुसूचित जाति का भी वो स्कीम में नहीं आता, मगर जो पिस रहा है उसमें, उसके लिए हमारा काम करना है। और हमने ये कहा है कि भी आप उसको पैसा दोगे तभी वो आगे करेंगे, नहीं तो अगर देखें तो हमारा जो 2013-14 से लेके 2017 तक 1,21,000 से बढ़ते हुए डबल 3,10,000 तक बच्चे पहुँचे। और 17 के बाद जब जिस पॉलिसी सरकार के पास आई, पंजाब सरकार के, तो बच्चों का रेट इतना गिरा कि आज 1.5 लाख पे आ गया। यानी जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आ गया। जबकि ये जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, और स्टूडेंट की जो इनरोलमेंट है जो कम होती जा रही है। और उसके लिए दोषी जो हैं कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के अधिकारी हैं। और इसमें एक विशेष बात ज़रूर कहूँगा कि जब ये घोटाला या चर्चा शुरू हुई थी, तो आज के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी हैं, तब वो अपोजिशन के लीडर थे, और उन्होंने कमीशन को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार के वित्त मंत्री और वो जो सामाजिक न्याय माइनॉरिटी के मंत्री के अगेंस्ट हमें शिकायत दी थी कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और आज तो सत्ता में हैं और खुद वित्त मंत्री हैं। पहले तो उनको बच्चों का वजीफ़ा जारी करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी रिजर्व सीट से जीत के आए हैं। तो इसके लिए उनका तो दायित्व ज़्यादा बनता है, और उनको पैसा जल्दी होना चाहिए। उन दोषियों के ऊपर सज़ा जो पहले वो मांग रहे थे वो खुद आप कर सकते हैं, वो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज उनके अधिकारी इनके ऊपर जवाब सही ना दे के कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो फिर वो गोलमोल क्यों करें? ये तो स्पष्ट अब उनको करना चाहिए। पहले तो वो धरना दे के उनके घर पे बैठे थे, और आज तो उनके पास सत्ता है, और सत्ता के ऊपर सभी उनके पास पावर है, और उसके लिए वो जो करना चाह रहे थे, जो मांग कर रहे थे, हमसे मांग कर रहे थे, वो कर सकते हैं, तो उनको करना चाहिए। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये मौका मिला है लुधियाने में आके इस फंक्शन में जुड़ने का। इस फंक्शन में जुड़ने का मकसद है कि संकल्प जो संस्था है उसने जिस प्रकार से हमारे युवाओं को तैयार किया है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो अब तक 7,000 हमारे यूथ हैं जो संकल्प की संस्थान में से ट्रेनिंग लेकर आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। इस साल भी 14 ने पास किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहले 2018 में एक बार पहले संकल्प जो संस्था लुधियाना में है यहाँ पे आया था। उस वक्त भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे, मतलब दिल में एक अरमान सा होता है उनको अप्रिशिएट करें। और मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक यूथ के अंदर में एक ये भावना होनी चाहिए कि किस प्रकार हम यूपीएससी का एग्ज़ाम करके एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के अंदर में हिस्सा बने, और उसके बाद में राष्ट्र की, समाज की और हर जन की सेवा करें। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।